Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay. Uh, so today we will be discussing the current affairs of 25th of January, 2026. Okay. And today I have got some very, very good articles from the Hindu newspaper. I must tell you today there were so good articles, too good. Okay. So one article, the first article is US official hints at removing of penalty levy on India. You remember 25% penalty duties tariffs, okay, for importing oil from Russia. 20% reciprocal tariffs, they are called trade tariffs, plus 20%, plus 25% penalty tariffs, taking total to 50%. Now, since it is expected, it is not expected, it is observed that Indian refineries have dropped its imports from Russia in terms of crude oil. So, it is also expected that the penalty levy of 25% may go away. Okay. The second news is special intensive revision may jeopardize democratic participation in Bengal, says Amartya Kumar Sen. You cannot doubt him. Okay. Nobel laureate in economics. He says that it may jeopardize democratic participation. Why he says so, I will tell you in the article. And it also, one more article related to that. 3.5 lakh unmapped voters yet to appear in special intensive revision hearings in Bengal. Means they have been called for, they have been summoned to give clarifications, but they have not appeared before the authorities, they have not appeared before the booth level officers. So they still are awaited for hearing, although the cutoff date is gone, but Election Commission is extending it. Okay. Coercion of the tribal people for Great Nicobar project unacceptable. Okay. Congress says that the Great Nicobar project, okay, is basically a threat to tribal life and tribal living. Okay. Now, what is this Great Nicobar project? When it was launched in 2021 by Niti Aayog. Why it was launched? All I will tell you the basics, and then I will tell you what are the current scenarios. Okay. 22.8% of population of Kerala and 15.8% of Tamil Nadu is going to be facing aging, means they are going to cross 60 years of age. Okay. It is related to, the article is related to silver economy. Okay. Now, what is silver economy? Everything you need to know about this, I will be telling you much in details. Okay. Then why is RBI nudging India to do at BRICS? What RBI wants India to do at BRICS? Integration of central bank digital currencies. I already told you why integration is required. Today's explainer says what is CBDC, how it is different from cryptocurrency, and what are the benefits if we integrate the BRICS plus countries central bank digital currencies, and what are the costs also, what are the risks associated. Okay. Now, if judges lose credibility, nothing will be left for judiciary. This is Justice Bhuyan who says that judiciary must be held as a credible institution. This is in light of recent transfers in which 1 minute of meetings of the collegium system has been published, which says that the transfers were made in light of directions from the central government. Okay. So it means independence of judiciary. He has said that it should not be compromised at any cost. Okay. Then what lies behind Trump's Greenland moves and in the eye of storm? These both articles are related to Greenland. Okay. Now, why Greenland matters to India? Why Greenland matters to United States of America? What is its current political position? How it is important for both the countries, Denmark as well as for USA, and why Greenland still chooses to be with Denmark, not with USA. All these questions will be answered in today's discussion. So very good discussions are coming up. Okay. पहला आर्टिकल क्या कह रहा है? यूएस ऑफिशियल जो है वो क्या कह रहा है कि रशियन ऑयल के इंपोर्ट पे जो इंडिया के ऊपर पेनल्टीज लगाई गई थी वो हटाई जा सकती है. ठीक है. हु इज दिस? यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी. जैसे इंडिया में फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, यूएसए में ट्रेजरी सेक्रेटरी. ठीक है. स्कॉट बेसेंट क्या कहते हैं कि इंडिया के ऊपर जो 25% पेनल्टी टैरिफ्स हैं वो हटाए जा सकते हैं. ये क्यों कह रहा है? ये कह रहा है क्योंकि इंडियन कंपनीज ने, इंडियन रिफाइनरीज ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया है. कितना कम कर दिया है? आज की डेट में जो है इट इज एट 2 ईयर लो, कि पिछले 2 साल में इतना कम कभी नहीं था जितना पहले आज हुआ है. और दूसरा, इसके बदले में हमारा ओपेक के साथ जो है ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज के साथ हमारा जो इंपोर्ट है हम वहां से अब ज्यादा कर रहे हैं. इसीलिए कह रहे हैं कि इनके साथ इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है एंड इट इज ऑन 11 मंथ्स हाई. पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा है. और रशिया के साथ
2 ईयर्स लो है। इसका मतलब हम रशिया से अपना इंपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको फिगर्स में बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी कुछ और कह रहे हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो क्या कहते हैं कि अप टू 500% भी हम टैरिफ लगा सकते हैं उस कंट्री के साथ जो रशिया के साथ ट्रेड डील्स करे या रशिया के साथ जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन रखे। ठीक है, अब हम ने भी ये जो किया है, रशिया से इंपोर्ट कम किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम यूएसए के प्रेशर के अंडर कम कर गए। इसका ये मतलब है हम अपने ट्रेड रूट्स और भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, कल को अगर फिर से ऐसी कोई थ्रेट आए, ऐसा कोई चैलेंज आए, तो हम उसको जो है इक्वली मीट कर पाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जियोपार्डाइज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन बंगाल। मैंने आपको पहले भी कहा था, अमर्त्य कुमार सेन हु वाज सर्व्ड अ नोटिस, a summon by Election Commission of India for related to discrepancies in his name and age in the voters list. Okay, एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है वो नोट की गई इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि इसमें एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये है कि जो एज गैप है, अब देखो क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, एज गैप बिटवीन मदर ऑफ अमर्त्य कुमार सेन एंड ही हिमसेल्फ। ओके, सो मदर सन का जो एज गैप है उस पर क्वेश्चन किया गया और अमर्त्य कुमार सेन से ये भी पूछा गया कि क्या एज थी उस वक्त आपकी मदर की जब आप पैदा हुए थे, हाउ वुड ही नो। ओके, एंड देन ऑल्सो उस टाइम पे कौन इतना डेटा रखता था कि इतना जो है, अब नाउ ही इज टर्निंग 92 ईयर्स ओल्ड। आप एक सदी पुराना सवाल पूछ रहे एक नोबेल लॉरिएट ऑफ इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो अब ये इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं कि हमने जो देखा है, दो चीजें जो है जरूरत थी एसआईआर में। एसआईआर को बहुत केयरफुली करना था और एसआईआर को बहुत ही पेशेंस के साथ करना था। ठीक है, वी नीड केयर एंड एडिक्वेट टाइम, एडिक्वेट टाइम। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं सवाल जवाब के लिए पहुंचा इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के पास, जो भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया उसके थ्रू पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लैक्स बोथ ऑफ देम, लैक्स बोथ, ना तो टाइम ना ही वो केयर के साथ ये काम कर रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पे ऑफिशियल्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो खुद ही क्या कह रहे हैं कि उनके पास हम ज्यादा टाइम नहीं है एंड दे आर डूइंग इट इन अ हरी एंड हेस्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो क्या हो रहा है, हरी एंड हेस्ट, जल्दबाजी में हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको इसके बेसिक्स ऑलरेडी बता दिए हैं। अब जस्ट आई एम डिस्कसिंग एडवांस की इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ऐसी जैसी जब आप ये काम करोगे, इतना आप स्ट्रिक्ट जो है और जल्दी जल्दी वाला प्रोविजंस रखोगे, तो उससे क्या होगा, कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो बैकवर्ड क्लासेस है, वल्नरेबल क्लासेस है, वुमेन्स है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, मुस्लिम वोटर्स, जो पहले से ही इतने ज्यादा लिटरेसी लेवल पे बहुत ऊपर नहीं थे कि उन्होंने अपना हर एक ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन रखा हो या जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रखा हो। ठीक है, तो आप अगर इतना स्ट्रिक्ट लेंगे इसमें, तो आप प्रॉपरली जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं उनको स्क्रूटिनाइज करने के लिए आपको टाइम होना चाहिए और आप जो है लोगों को भी टाइम दें कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। अगर वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, आप उनका नाम काट दे रहे हो, जबकि वो मौजूद है, जिंदा है और जस्ट उनके पास डॉक्यूमेंटेशन पुराना नहीं अवेलेबल है। और अनमैप्ड वोटर्स का सबसे बड़ा इशू है। अनमैप्ड वोटर्स मींस जिनको आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो 2002 की वोटर लिस्ट पे। ठीक है, तो दूसरा आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है। दूसरा आर्टिकल क्या है, वो कहता है कि अनमैप्ड वोटर जो है वो कितने हैं, 3.5 लाख अनमैप्ड वोटर्स है। अब अगर इनका आप 2002 की वोटर लिस्ट से रिलेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको हटा दोगे। वो बीएलओस के पास जाएंगे, फ्रेश हियरिंग की डेट लेंगे उनसे, लेकिन तब तक आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। खासकर वुमेन जो अपने शादी करके कहीं और निकल गई हैं या माइग्रेट हुई हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन गैप्स रहते हैं, वुमेन की डॉक्यूमेंटेशन उतनी प्रॉपर नहीं रहती, क्योंकि एजुकेशन के मामले में अब तो जेंडर गैप क्लोज हो रहा है, लेकिन पहले काफी जेंडर गैप रहा है, तो लोगों ने वुमेन के डॉक्यूमेंटेशन पे उतना फोकस किया नहीं है। ठीक है, तो 32 लाख वोटर्स जो है उनको क्या कहा गया है, उनको कहा गया है कि अनमैप्ड है। वो क्या है, अनमैप्ड। और उनमें से जब हियरिंग की तो बहुत सारे लोग उनकी मैपिंग कर दी गई, लेकिन अभी भी 3.5 लाख वोटर्स अभी भी क्या है, अनमैप्ड है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है कि जो अनमैप्ड लोग हैं, जब हम उनको नोटिस भेजते हैं तो नो शो रेट
नो शो रेट मीन्स वो सामने आ ही नहीं रहे, वो हियरिंग में अपेयर ही नहीं हो रहे। 10% तो नो शो रेट है, मीन्स 10% लोग हियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो क्या आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आप उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दो, या आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप थोड़ा और टाइम ले लो और उनको कॉल अप करो, उनको और थॉरो इन्वेस्टिगेशन करो, वो कहाँ है, वो क्यों इलेक्शन कमीशन के सामने, ऑफिशियल्स के सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट डेट जो है वो बढ़ा तो दी गई है, मैपिंग के लिए लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 7 फेब। लेकिन अगर आपके पास तब तक भी वोटर्स नहीं आए, फिर क्या करोगे, हटा दोगे उनको? नहीं, उसके बाद फिर एक्सटेंशन करना पड़ेगा, फिर उनको जो है ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साबर इंस्टीट्यूट एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कह रहा है कि वुमेन ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स जो है उसमें 43.7 वोटर्स जो डिलीट हुए हैं, ठीक है, वो वुमेन है। डिलीटेड वोटर्स आर वुमेन, ठीक है, deleted voters are women. 43.7% women voters have been deleted from the draft electoral rolls. Okay, now why this women have been deleted more? They are saying that because of the marriage reasons they might have moved away. Okay, but you have marked 37.29% women as dead voters. Okay, is it that women have died more? Okay, and you have said 16.54 voters as non-traceable. Okay, now what is this? There are huge discrepancies which are being highlighted. Okay, moreover 2.48% women voters are called categorized as already enrolled, means they are already in the voter list, so no fresh enrollment is required. Okay, so these data discrepancies, in yesterday's article also I told you that there are huge questions about the logical discrepancies which are raising, like one parent having more than 200 children, one parent having 50 children, 40 children. These logical discrepancies somewhat are putting more doubts on the special intensive revision exercise. Okay, ठीक। अब आगे 22.8% of the people in Kerala and 15.8% in Tamil Nadu are considered to be are going to be about 60 years by 2036. 2036 में 22.8% population of Kerala will be 60 plus age and 15.8% in Tamil Nadu will be 60 plus age group, ठीक है। ऐसे में आपको फोकस करना है अपनी सिल्वर इकोनॉमी के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है? सिल्वर इकोनॉमी के ऊपर। ये टर्म आपके आर्टिकल में यूज की गई है और आपके लिए बहुत बार न्यूज में आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, द टर्म सिल्वर इकोनॉमी इज इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन? ओके, व्हाट डज इट मीन? सिल्वर इकोनॉमी मीन्स dealing with production, distribution and consumption of those goods and services which are more required by the senior citizens. Okay, economic activities which cater senior citizens. Simply, silver economy means dealing with economic activities, catering senior citizens. Definitely senior citizens don't need schools anymore, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल्स हटा दोगे, क्योंकि आपके नॉर्मल सिटीजन्स अभी भी हैं ही, उसमें चिल्ड्रन एडल्ट हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए आप स्पेशल फोकस किस किस चीज़ों पे, किन किन चीज़ों पे डालोगे, आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस डालना है, ठीक है। मेनली आपको किस पे डालना है? हेल्थ केयर के ऊपर, ठीक है। हेल्थ केयर में क्या क्या एरियाज आपको फोकस करने पड़ेंगे? हेल्थ केयर की फाइनेंसिंग सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि एम्पल फाइनेंसिंग हो, उसी हिसाब से उसका इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन इज मोर वल्नरेबल टू डिजीज। ओके, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करना पड़ेगा हेल्थ केयर सिस्टम में, इन हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, सो दैट हेल्थ केयर जो है वो एक्सेसिबल हो जाए हर किसी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको सब्सिडीज को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, कि जो सब्सिडीज एडल्ट्स के लिए हैं, आपको ओल्ड एज पेंशंस एटसेट्रा वेलफेयर पेमेंट्स की तरफ जो है ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नॉन मेरिट स्पेंडिंग जो है उसको कर्टेल करना पड़ेगा, ठीक है।
और ये सारी चीजें जो है किसने सजेस्ट की हैं इस समय हमें? ये सजेस्ट की है हमारे पास आरबीआई की एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फाइनेंसेस, स्टडी ऑफ बजट 2025-26, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, हाउ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस। अच्छा, यहां पे मैं आपको एजिंग के बारे में कुछ डेटा बताना चाहता हूं, ठीक है। एजिंग के बारे में ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि इंडिया का ओवरऑल जब आपकी पॉपुलेशन 60% प्लस चली जाती है, 60 प्लस ईयर्स चली जाती है, तो नेचुरल सी बात है आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है, ओल्ड एज पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे ही आपका वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली कम हो जाती है, अनलेस कि आपका फर्टिलिटी रेट अच्छा हो। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है और इंडिया उसके लिए नो एक्सेप्शन है। इंडिया में भी इस समय जो है फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। और फर्टिलिटी रेट में जो सस्टेन्ड डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वजह से हम जो भी स्टेट्स हैं जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कुछ ही सालों के बाद दे विल नॉट बी एबल टू यील्ड द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इन द एज ग्रुप यूजुअली कहा जाता है 15 to 59 ईयर्स, लेकिन अब 15 टू लेटेस्ट क्लासिफिकेशंस के हिसाब से 15 to 64 ईयर्स भी कुछ कुछ बुक्स में क्लासिफाई किया जाता है वर्किंग एज, अदरवाइज इट इज मोस्टली 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप, ठीक है। तो अगर आपके पास ये पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का, यूथ पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा जो है फायदा आप उठाते हैं, तब दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वो स्टेट्स जिनमें पॉपुलेशन कम हो रही है वर्किंग फोर्स की, वर्क फोर्स की, और एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, ऐसी स्टेट्स के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड यील्ड करना बाद में ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीजें बताना चाहता हूं कि आप किस स्टेट को एज्ड स्टेट बोल सकते हो, किस स्टेट्स को आप मॉडरेटली एज्ड बोल सकते हो या इंटरमीडिएट बोल सकते हो, किन स्टेट्स को आप यूथफुल स्टेट्स बोल सकते हो। वो स्टेट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि ये याद रहे, अच्छा ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। ओके, वो स्टेट्स जिनमें 20% से ज्यादा पॉपुलेशन, 20% प्लस पॉपुलेशन जब हो जाए आपकी 60 ईयर्स प्लस, 60 ईयर्स प्लस, ऐसी स्टेट्स को आप क्या कह सकते हो? एजिंग स्टेट। क्या कहते हो? एजिंग स्टेट, ठीक है। क्या कहते हो आप ऐसी स्टेट को? एजिंग स्टेट, ठीक है। वो स्टेट्स जिनमें पॉपुलेशन 10 से 10 to 15% पॉपुलेशन, ऐसी स्टेट्स जिनमें 10 से लेके 15% पॉपुलेशन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इंटरमीडिएट मींस इसमें एजिंग भी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यूथफुल भी अभी ये स्टेट नहीं है। लेकिन जिस स्टेट में लेस देन 10% पॉपुलेशन, जिस स्टेट में लेस देन 10% पॉपुलेशन जो है वो 60 ईयर्स प्लस हो, ऐसी स्टेट को आप क्या कहते हो? यूथफुल स्टेट। क्या कहते हो? यूथफुल स्टेट, ठीक है। तो यूथफुल स्टेट कौन सी स्टेट हो गई? वो स्टेट जिसकी 10% पॉपुलेशन ने अभी 60% से ज्यादा एज क्रॉस नहीं किया, 60 ईयर्स से ज्यादा एज क्रॉस नहीं किया। इंटरमीडिएट किस स्टेट को बोलोगे? जिसके 10 से 15% की पॉपुलेशन जो है वो 60 ईयर्स क्रॉस नहीं किया है अभी, दैट इज इंटरमीडिएट एजिंग। और फुली एज्ड स्टेट जो है किसको कहोगे? जिसकी 20% से ज्यादा पॉपुलेशन क्या हो चुकी है? 60 ईयर्स प्लस हो चुकी है। तो इस हिसाब से केरला जो है वो बाई 2036 केरला क्या हो जाएगी? एक एज्ड स्टेट कहलाई जाएगी, और वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है सिल्वर इकोनॉमी को बूस्ट करने की, ठीक है। अब केरला के लिए छोड़ो, नेशनल एवरेज देखो। इस जैसे जैसे मैंने कहा एजिंग बढ़ती है वैसे वैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो केरला का वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो आज कितना है? आज है 62%। कितना है आज? 62%। और 2031 तक ये कब तक पहुंच जाएगी? 60%। और 59.5% हो जाएगी ये 2036 तक, ठीक है। अब नेशनल लेवल की अगर बात करें, ऑन एवरेज इंडिया की इस समय वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है आज की डेट में इट इज अराउंड 63%। तो ये कह रहा है कि
64.8% हो जाएगी ये 2026 तक, और फिर से ये बढ़ेगी उसके बाद 2031 तक 65.1% हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये भी एक डिक्लाइन विटनेस करेगी और 64.9% हो जाएगी ये 2036 तक। तो जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होती है, अगर आप फर्टिलिटी रेट मेंटेन ना कर सको और रिप्लेनिशमेंट रेट मेंटेन ना कर सको, प्रॉपर बर्थ रेट ना कंट्रोल, प्रॉपर बर्थ रेट जो है वो मेंटेन ना कर सको। सो दिस इज अबाउट सिल्वर इकोनॉमी एंड एजिंग पॉपुलेशन इन तमिलनाडु एंड केरला। अच्छा, एक और ट्रेंड इस रिपोर्ट में नोटिस ये किया गया है कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स इंडिया की जो है उनमें इस समय डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है और ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एजिंग की तरफ एजिंग की तरफ जा रही है। हालांकि डेंजरसली, जैसे केरला का हाईएस्ट रेट हो सकता है 22% के आसपास जा सकता है 2036 तक, इतना बाकी स्टेट्स में नहीं है, लेकिन मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है वो क्या हो रही है इस समय एजिंग विटनेस कर रही है, एजिंग हो रही है पॉपुलेशन की। तो इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली ये एक कॉज ऑफ वरी भी है कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कम होता चला जाएगा। हम अपने जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के बेनिफिट्स रीप आउट कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इकोनॉमिक्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज ऑल्सो सिल्वर इकोनॉमी हियर, द टर्म हियर इट हैज बीन रिटन, सो प्लीज रिमेंबर दिस टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल सेज अगर जजेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इफ जजेस लूज क्रेडिबिलिटी, तो फिर जुडिशरी के पास कुछ नहीं बचेगा। सॉरी, अगर जजेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, जस्टिस उज्जवल भुयन ने एक स्पीच में कहा कि अगर जजेस की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, जुडिशरी में कुछ भी नहीं बचेगा। ही टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो ये कहता है, दिस प्रिंसिपल सेज दैट जुडिशरी शैल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर भी इंटरवीन ना करे, एग्जीक्यूटिव भी इंटरवीन ना करे। लेजिस्लेचर मीन्स ऑर्डिनरी लॉ मेकर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द स्टेट। एग्जीक्यूटिव मीन्स ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज द ministers in the central government or the state government are part of executive. They are called political executive. Okay, now the case is related to transfer of Madhya Pradesh High Court judge Justice Atul Sridharan. Okay, Justice Atul Sridharan was being transferred from Madhya Pradesh High Court to Chhattisgarh High Court, but later on he was transferred to Allahabad High Court. And the Allahabad High Court, why the transfer was made to Allahabad High Court? ट्रांसफर वहां क्यों किया गया, अब वो तो पता चलेगा जब कोई ऑर्डर आए या कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश हो। तो एक मीटिंग हुआ किसका, कोलिजियम का। कोलिजियम की मीटिंग में उसने कहा कि रिकंसिडरेशन किसने कहा करने को, रिकंसिडरेशन करने को गवर्नमेंट ने कहा। तो जो कोलिजियम जब बैठता है जजेस को सेलेक्ट करने का, व्हाट इज कोलिजियम, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कोलिजियम जब बैठता है तो उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करता है, ठीक है। उस रेजोल्यूशन में बताता है कि क्या ट्रांसफर की गई। तो इनका जो ट्रांसफर छत्तीसगढ़ न करके इलाहाबाद किया, तो इसका रीजन उन्होंने लिखा कि ये गवर्नमेंट ने कहा था कि इसको रिकंसिडर करो, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ नहीं इलाहाबाद ट्रांसफर किया जस्टिस श्री अतुल श्रीधरन का, ठीक है। अब ये जो है ये वाला सेंटेंस कि गवर्नमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट ने कहा कि रिकंसिडर करो, तो इसका ये मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे आपने रिकंसिडर कर भी लिया, तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली इंट्रूड कर रही है कोलिजियम सिस्टम के वर्किंग में। सीरियस इंट्रूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं रहा तो फिर जजेस के पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसने जस्टिस बुहेन ने एक स्टेटमेंट भी यूज किया इसमें, किसका, कैरोलिन कैनेडी का स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट। वी नीड जजेस who stand erect against political whims of time. We need judges who stand erect against political whims of the time. Means judges who will not bow in front of the executive forces or any other political interventions. So judiciary, transfer of judges is internal matter of judiciary. It shall be dealt by judiciary itself. Okay. And he also says that it is a sad day for judiciary that because of government's order of reconsideration, they have reconsidered the transfer of Justice Atul Sridharan. He says that courts basically require
public faith. Public trusts courts only because courts act impartially, and judges were basically only the stand guard for this faith. जजेस ही सिर्फ जो है वो क्या थे, इस फेथ का मेन रीजन थे, जो इस फेथ को बचा रहे थे. लेकिन अब अगर ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट इंट्रूजन हो रहा है, तो फिर जुडिशरी के पास कुछ भी नहीं बचेगा. और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या कहती है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना. ठीक है, सोल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को. जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अपहोल्ड करना. ठीक है, वो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उनको चेक में रखना जुडिशरी का काम था. लेकिन अब अगर जुडिशरी उन्हीं के इन्फ्लुएंसेस पे काम करे, तो फिर जुडिशरी के पास कुछ भी नहीं बचता. तो इसलिए इस वक्त वो क्या कह रहा है कि हमको जो है सबसे ज्यादा जरूरत है जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने की. दिस इज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल. ठीक है, नाउ व्हाट इज आरबीआई नजिंग इंडिया टू डू विद ब्रिक्स? ठीक है, आपको पहले ये पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. दिस इज कॉल्ड ब्रिक्स. पहले ये सिर्फ ब्रिक था, BRIC, ब्रिक. अब ये ब्रिक्स हो गया, लेकिन लेटेस्ट इसमें कई सारी कंट्रीज ने और भी ज्वाइन कर लिया है. ठीक है, तो अब ये जैसे इजिप्ट वगैरह ने जो ज्वाइन करने के बाद अब ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड एज ब्रिक्स प्लस. ठीक है, रिसेंटली कई सारे न्यूज़पेपर्स ने, न्यूज रूम्स ने ये कवर किया कि आरबीआई ने गवर्नमेंट ब्रिक को कहा है, इंडिया जो है, इंडिया इज द होस्ट फॉर 2026 समिट. ठीक है, इंडिया इज द होस्ट फॉर 2006 समिट ऑफ ब्रिक्स. ठीक है, तो आरबीआई ने ये कुछ न्यूज रूम्स का, ओपनली तो नहीं आया आरबीआई का कोई भी स्टेटमेंट, लेकिन न्यूज रूम्स ने कवर किया कि आरबीआई ब्रिक्स कंट्रीज को कह रहा है कि आप अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को क्या करो, इंटीग्रेट करो, जोड़ो उनको. ठीक है, इंटीग्रेट करो, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, ताकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म बन जाए. किस लिए? आप आपस में जो है वो पेमेंट्स कर सके. ठीक है, आप आपस में क्या कर सके, पेमेंट्स कर सके. इस समय हम इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए किस चीज पे जरूरत डिपेंडेंट है? इस समय हम इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए डिपेंडेंट है स्विफ्ट के ऊपर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फंड ट्रांसफर. स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, एंड इट इज बेसिकली डॉलर डोमिनेटेड. इस पे रशिया और यूक्रेन को ब्लॉक कर दिया गया है. रशिया और ईरान को इस पे ब्लॉक कर दिया गया है. रशिया भी इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पा रहे, और ईरान भी इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग व्हाट यूएसए वांट्स देम टू डू. ठीक है, इसलिए इस समय क्या है कि हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है, हमारा ट्रेड का अच्छा शेयर है रशिया के साथ, जो मैं पहले आर्टिकल्स में बता चुका हूं. इसलिए हम रशिया को रुपी में पेमेंट कर रहे हैं. उसकी वजह से वहां पे रुपी का क्या हो रहा है, डंपिंग हो रहा है. वो वापस यहाँ के हमारे शेयर्स में आके इन्वेस्ट करना उनकी मजबूरी हो रही है, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना. तो हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो एक ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स को हमारे प्रमोट करे, और इसलिए हम बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का. व्हाट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? पहले तो व्हाई वी कॉल इट सेंट्रल बैंक, बिकॉज इट इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक. व्हाई वी कॉल इट करेंसी? बिकॉज इट इज लीगल टेंडर. लीगल टेंडर मींस आप इसको मना नहीं कर सकते कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लीगल टेंडर है. इट इज बेसिकली एक्चुअली लीगल करेंसी. एंड व्हाई वी कॉल इट डिजिटल? बिकॉज इट इज इन डिजिटल फॉर्म. इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 2021-22 के बजट में पहली बार जो है ये म्यूल की गई, पहली बार इसको डिस्कस किया गया और थॉट दिया गया और लॉन्च की गई ई रूपी. ठीक है, अब ई रूपी हमारा एक्चुअल रूपी से कैसे डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सोचना समझना. हमारा एक्चुअल रूपी जो है, जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हमारे एक बैंक से पैसा कट के दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है, दैट इज यूपीआई ट्रांसफर. ठीक है, लेकिन सीबीडीसी में क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ई रूपी जो है, ये हमेशा याद रखना, इट इज डब्ल्यू टू डब्ल्यू ट्रांसफर, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर, नॉट बैंक अकाउंट. इट इज वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर. ठीक है, तो ये वॉलेट में ई रूपी के फॉर्म में रहती है, और आप दूसरे जिस वॉलेट में डाल रहे हो वो भी ई रूपी एक्सेप्टर वॉलेट होना चाहिए. और इसका रिकॉर्ड जो रखोगे, जैसे बैंक का आपका रिकॉर्ड रहता है बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में, इसका रिकॉर्ड रहता है डिजिटल लेजर में, जिसको आप ब्लॉकचेन कहते हो. ठीक है, इसका रिकॉर्ड किस में रहता है, ब्लॉकचेन में, और ब्लॉकचेन को कोई भी एक्सेस कर सकता है. लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करेंसी है, वॉलेट टू वॉलेट, नॉट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल करेंसी, विच इज एक्चुअली व्हेन वी डू यूपीआई ट्रांसफर, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट. और ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो ट्रांसफर का रिकॉर्ड होता है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, जैसे हमारा बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट में आता है,
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जब ट्रांजेक्शन करोगे तो ये किस में आएगा, ये आपके आएगा वॉलेट में, और वॉलेट में जो है ये रिकॉर्ड होगा किस तरीके से, एक डिजिटल लेजर के फॉर्म में, ठीक है, डिजिटल लेजर के फॉर्म में, ठीक है। ये बेसिकली एंट्रीज को नोट करता है ब्लॉक्स के फॉर्म में, ठीक है, एंट्रीज को ब्लॉक्स के फॉर्म में नोट करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का बेस्ट फीचर ये है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो ट्रांजैक्टिंग पार्टनर्स है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, कोई भी, हालांकि इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, यू कैन एक्सेस इट, आप देख सकते हो, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। आप चेंज भी नहीं कर सकते, मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, उससे फर्दर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इसको चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, सपोज इस वॉलेट से इस वॉलेट में एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, इस वॉलेट से वापस ये ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। जब आप ये रिवर्स ट्रांजैक्शन करोगे तब जाके ये एंट्री जो है ये हट जाती है, ठीक है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है डिजिटल फॉर्म में लेजर बनाने के लिए, ताकि डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड हो और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो और सबके पास एक्सेस रहे। इसीलिए आरबीआई कहता है कि अगर आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सारी कंट्रीज की क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपस में पेमेंट्स करना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है, और सारी कंट्रीज आपस में क्या है, कनेक्टेड हो जाएंगी। इससे हम इससे ब्लैक मनी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इस समय ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, इन दोनों को ट्रैक किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए जो है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को जो है आप इकट्ठा जो है जोड़ सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो ब्रिक्स कंट्रीज या ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, ताकि अपना एक इकोसिस्टम बन जाए पेमेंट्स का, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो है ये क्रिप्टो करेंसीज से भी अलग होती है। क्यों? क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज है, अनरेगुलेटेड करेंसीज है, और उनके पीछे वैल्यू कोई नहीं है, बैकिंग कोई नहीं है, दे जस्ट आर करेंसी और दे जस्ट आर एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट, ठीक है। और ये दे आर करेंसीज बिकॉज दे आर बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक, दे आर रेगुलेटेड, दे आर प्रॉपरली लीगल टेंडर, ठीक है। अब किसी को क्रिप्टो करेंसी दोगे वो जरूरी नहीं एक्सेप्ट भी करे, तो वो लीगल टेंडर भी नहीं है, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज, ठीक है। तो अब ये जो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, ये भी जब ज्वाइन करे हैं ब्रिक्स को, तो अब ये ब्रिक्स प्लस हो गया। तो अगर इतनी कंट्रीज जो है ये अपना एक सेंट्रल बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या करें, जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाए, तो इनके आपस में ट्रेड जो है वो इजीली हो सकती है, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि इनके, और क्रिप्टो करेंसीज बहुत रिस्की है, लेकिन सीबीडीसी रिस्की नहीं है, इसका एक इशूअर है प्रॉपर, सेंट्रल बैंक इसका एक रेगुलेटर है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक सेफ इकोसिस्टम में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इसके दो तीन रिस्क हैं। सबसे बड़ा रिस्क है, ट्रम्प साहब क्या कहेंगे। ट्रम्प साहब ऑलरेडी ये कहते हैं कि जो भी डॉलर से अगेंस्ट जाएगा, डॉलर को वीक करने की कोशिश करेगा, डी डॉलराइजेशन करेगा, तो हम उन पे अप टू 500% टैरिफ्स भी लगा सकते हैं। ऑलरेडी हम पे 50% चल रहे हैं, तो हमको 50% और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये थोड़ा सा हमारा ट्रेड जो ऑलरेडी जो ट्रेड डिस्टर्बेंस चल रहा है यूएसए के साथ, उसको और फर्दर एग्रीवेट कर सकता है। प्लस दूसरा जो ज्यादा बड़ा इशू है वो ये है कि इसके लिए कैसे मल्टीपल कंट्रीज एक साथ एक लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो दो इश्यूज मेनली है, एक इशू है लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, कि कैसे ये कंट्रीज जो है बना पाएंगी। इसमें कई सारे साल लग सकते हैं, और इंटीग्रेशन का फायदा और कई सारे सालों के बाद हमको देखने को मिल सकता है। सो इट इज ए कम्बरसम लॉन्ग एक्सरसाइज, लेकिन अगर शुरू आज किया जाए तो आगे और ज्यादा आसानी हो सकती है। लेकिन इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट when already Trump is so much angry? He is already weaponized the tariffs for whole world, ठीक है। this we need to think of। तो ये है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। प्लीज गो थ्रू इट, वंडरफुल आर्टिकल, और वट एवर आई हैव टॉट ये सारी इसी की जो है पूरी समरी, पूरा मैंने फुल डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो 2021 में स्टार्ट किया गया, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च क्यों किया, और हमको इस प्रोजेक्ट के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है, और हमको ये प्रोजेक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, ठीक है। लेकिन इसको कहते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ग्लोबल मैरीटाइम हब बनेगा। वो कैसे बनेगा? नीति आयोग ने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया
21 में इसने इसमें इसमें 4 चीजें जो हैं कही कि हम जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंडर वी विल मेक 4 इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। व्हाट आर दोज 4? वन इज बेसिकली इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। तो इससे क्या होगा, हम जो है अलग अलग ग्लोबल पोर्ट्स पे, जैसे वियतनाम के पोर्ट्स पे या फिर सिंगापुर, कोलंबो, इन पोर्ट्स पे हम जो है डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा ये क्या कहते हैं, हम एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। वी विल मेक अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उससे क्या होगा, हमारी बेटर कनेक्टिविटी बन पाएगी और एविएशन इकोनॉमी में भी हमारा जो है वो बूस्ट होगा, टूरिज्म भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम क्या बनाना चाहते हैं, एक टाउनशिप और एक गैस सोलर पावर प्लांट, ओके। एक टाउनशिप एंड 1 गैस सोलर पावर प्लांट। ये 4 चीजें मेनली प्रपोज्ड है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट हब से क्या होगा, इंडिया को फॉरेन पोर्ट्स पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अपनी ट्रेड के लिए, और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जो है हम अच्छे से बेटर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। सिविलियन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, वहां पे एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेजर स्ट्रेट्स हैं, जैसे कोलंबो मलक्का स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है और लोमोक स्ट्रेट है, इनके पास जो है वो, इनके पास जो है लोकेलिटी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेलिटी, हम ग्लोबल ट्रेड को और एनर्जी सप्लाई को और क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। इससे हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बढ़ सकती है, ये गवर्नमेंट कहती है। और इससे हम अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो वर्जन है 2014 का हमारा, कि हम अब वहां की तरफ एक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली हम एंगेज कर रहे हैं ट्रेड रिलेशंस में, तो ये उसके लिए हेल्प करेगा। और क्वाड, जो 4 कंट्रीज का क्वाड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसको भी हम ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर पाएंगे, बूस्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि ये बहुत इकोलॉजिकली डिजास्टर प्रोजेक्ट है, और इसमें हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी केस चल रहा है। डिस्पाइट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जबरदस्ती पुश करके, बुलडोज थ्रू मींस जबरदस्ती पुश करना और इसको आगे बढ़ाना और इसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें ये कहा कि ये जो प्लान्ड मिसएडवेंचर है गवर्नमेंट का, दिस इज मॉकरी ऑफ ऑल लीगल एंड डेलिबरेटिव प्रोसेस। डिस्कशन नहीं कर रहे, लॉ को नहीं मान रहे, तो इसके बावजूद कि ये ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, गवर्नमेंट स्टिल इसको जो है आगे पुश कर रही है, पुश थ्रू कर रही है। और ये ट्राइबल्स के साथ जो ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये उनके लिए जो है थोड़ा सा डिजास्टर्स है, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, ठीक है। वो ये है कि व्हाट लाइज बिहाइंड ट्रम्प्स ग्रीनलैंड मूव्स। व्हाट लाइज बिहाइंड ट्रम्प्स ग्रीनलैंड मूव्स मींस, ट्रम्प ग्रीनलैंड में जो एडवेंचर करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को इतने डेस्परेटली क्यों चाहते हैं। सबसे पहले इसके लिए ज्योग्राफी में जब भी आपको कोई आर्टिकल पढ़ना हो, आप उस जगह की लोकेशन देखना जरूरी है, बेसिक्स देखना जरूरी है, उससे आपको बहुत अच्छे से याद होता है, ठीक है। लेट अस सपोज ये मेरे हाथ में ग्लोब है, इस ग्लोब को जब मैं ऊपर से देखता हूं, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये है अपना आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है यहां पे ये कंट्री जो लोकेटेड है, दिस कंट्री इज ग्रीनलैंड, ठीक है। अब आप देख लो बीच में कनाडा है, कितना वास्ट गैप है, और यहां पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको चाहिए कंट्रोल किसके ऊपर, ये ग्रीनलैंड के ऊपर जो आर्कटिक टेरिटरी है। और ये आर्कटिक टेरिटरी किसके कंट्रोल में है इस समय, ये एक सॉवरेन टेरिटरी है। लेकिन इसमें डेनमार्क क्यों लिखा है फिर, क्योंकि ये डेनमार्क के एक कॉलोनी थी जो 2019 में सेल्फ गवर्नेंस अटेन किया। पहले तो इसने 1979 में, यहाँ पे 18th सेंचुरी की कॉलोनी है डेनमार्क की, ठीक है।
और ये आर्कटिक सर्कल में है, ठीक है। 1979 में इसने होम रूल अटेन किया और 2009 में सेल्फ गवर्नेंस अटेन किया। अभी भी फुली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया। अब ये होम रूल और सेल्फ गवर्नेंस किससे अटेन किया? इट वाज बेसिकली अंडर द रूल ऑफ डेनमार्क, ठीक है। तो डेन रूल के अंदर रही है ये हमेशा से। आज भी दो चीजें इसकी डेनमार्क कंट्रोल करता है, एक इसकी फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क कंट्रोल करता है और एक इसका डिफेंस आज भी डेनमार्क कंट्रोल करता है। मींस ग्रीनलैंड को कंप्लीट इंडिपेंडेंस आज भी नहीं है। वजह यह है कि ग्रीनलैंड फाइनेंशियली इकोनॉमिकली ओनली 55,000 पीपल लिविंग इन दिस लार्जेस्ट आइलैंड विच इज मोस्टली कवर्ड विद स्नो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। यस, आइस इज मेल्टिंग देयर, ओके। ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ दिस आइस, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ द स्नो, वहां पे क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम एन आइस आइलैंड इनटू ए वाटर आइलैंड विच में ओपन न्यू ट्रेड रूट्स। काफी सारे ट्रेड रूट्स ग्लोबली जो है इसके लिए ओपन हो जाएंगे। और दूसरा यह है कि ट्रंप साहब जो रीजंस बताते हैं वो रीजंस एक्चुअली नहीं है, रीजंस कुछ और है। वो ये कहते हैं कि हमको ये स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी के पर्पज से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी टेरिटरी है, जबकि हकीकत यह है कि ये टोटल अगर 32 क्रिटिकल मिनरल्स को देखोगे, इट इज अ सोर्स फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 24, अप्रोक्सीमेटली 24 क्रिटिकल मिनरल्स का सोर्स ग्रीनलैंड है। अब वो कहते हैं यहाँ पे डीपर पता नहीं कितना कितना फीट का आइस खोद के हम क्यों करेंगे वो एक्सप्लोरेशन, लेकिन फ्यूचर विजन वही है, ठीक है। तो अब यहां पे डेनमार्क कौन सा कंट्री है? ये बेसिकली दिस इज द डेनमार्क कंट्री, ठीक है। अब इसका दूसरा भी मैंने मैप का वर्जन रखा है, ये तो टॉप व्यू है, ये ग्रीनलैंड है, दिस इज इन डेनमार्क्स कंट्रोल, लेकिन यूएसए वांट्स इट्स कंट्रोल, ओके। यूएसए ने पहले थ्रेटन भी किया कि हम मिलिट्री ऑक्यूपेशन इसका रूल आउट नहीं कर रहे हैं, हम मिलिट्रीली भी इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बिगर थ्रेट यह है कि यूरोपियन यूनियन को कैसे असाइड रखें, और दूसरा थ्रेट यह है कि नेटो जो पॉलिसी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ द कंट्रीज अराउंड द अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं बीच में आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए अब ये बीच में क्या कह रहे हैं कि आई एम गिविंग अ ग्रेट रियल एस्टेट डील, मींस आई एम परचेजिंग द होल लैंड फॉर सम बिगर प्राइस, ओके। लेकिन ग्रीनलैंड के जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, ही इज सेइंग दैट इट इज एब्सर्ड, ठीक है। ग्रीनलैंड की लोकेशन को और क्लैरिटी अगर एटलस से देखना है तो मैंने एटलस का भी यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है दिस इज बेसिकली द अदर रीजन नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अपर पार्ट्स में है, ठीक है। उसके बाद यहां से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो और थोड़ा सा नीचे है, यहां से नीचे, ठीक है। लेकिन उसके बदले में ग्रीनलैंड के अगर यहां पे कॉर्नर में देख रहे हो ये आइसलैंड है, तो ये मैप को यहां से आगे समझो तो दिस इज बेसिकली डेनमार्क, समवेयर हियर इट इज समवेयर हियर इट इज द कंट्री डेनमार्क, ठीक है। सो डेनमार्क से आइसलैंड इतना दूर है, आइसलैंड से इतना दूर ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ये जो है एटलस की लोकेशन है, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको आइडिया हो गया होगा, और नहीं आइडिया हुआ तो वर्ल्ड मैप देख के एक बार एटलस देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको आइडिया होना चाहिए ग्रीनलैंड आज भी एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। इसका सेल्फ रूल है, लेकिन स्टिल इसका डिफेंस और इसका फॉरेन अफेयर्स जो है वो कौन देखता है? स्टिल इसका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कौन देखता है? आज भी डेनमार्क देखता है। इसलिए ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट या सॉवरेन कंट्री नहीं है, लेकिन हां इसका अपना इस समय सेल्फ रूल जो है, ठीक है। अब अमेरिका को ये क्यों चाहिए? सबसे पहले अमेरिका ने ये डिमांड कब शुरू किया? ये शुरू किया अमेरिका ने फर्स्ट टाइम 2019 में, ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम ही वांटेड, he said that we will be basically going for during the first term he said we will be basically acquiring Denmark for security purpose, okay. But at the same time Prime Minister of Denmark says that Greenland is not up for sale, okay. During the second term 2025 again Trump is saying we want Denmark and we want Greenland. Now he is so obsessed with it, he has slapped 8 European countries with the 10% tariffs. Already they were having 25% tariff, and he has threatened that we will put up 25% more tariffs from June 1 onwards, okay, because these countries are not helping USA to acquire Greenland, okay. But now recently, अब ये कहाँ गए थे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट पे डावोस में, ठीक है। वहां पे ट्रंप ने क्या कहा कि हम जो है
इस तरह से नहीं एक्वायर, मिलिटरीली एक्वायर नहीं करेंगे, हम एक फ्यूचर डील की बात करेंगे जिसमें ग्रीनलैंड ही नहीं, हम एक बड़े लेवल पे बात करेंगे, एंटायर आर्कटिक रीजन की बात करेंगे और सभी का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। अब ये सच ए डील जो है, ये वाली जो ऐसी डील है, ट्रम्प कह रहे हैं कि ये फाइनाइट नहीं होगी, इट विल बी एन इनफाइनाइट डील। हम ग्रीनलैंड अलोंग द आर्कटिक सभी जगह पे क्या करेंगे, हम अपना और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, जैसे गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्लान जो है, जो यूएसए जो है वहां से अपना गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम में अपने वेपन्स प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या है, पहले ये मैटर क्यों करता है, दो रीजन है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाले जो क्लेम है वो ट्रंप सामने लाते हैं, लेकिन हिडन जो है वो किस लिए है, हिडन एजेंडा जो है वो किस लिए है, हिडन एजेंडा जो है वो बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में ट्रंप कहते हैं कि हमारा एक पैक्ट है डेनमार्क के साथ, यूएस डेनमार्क पैक्ट ऑफ 1951, यूएस डेनमार्क पैक्ट 1951, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस पैक्ट में हमारा ये है कि जब भी हमको आर्कटिक में सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो क्या हो, महसूस हो, सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर महसूस हो तो यूएस जो है वहां पे क्या कर सकता है, अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकता है ग्रीनलैंड में, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि चलो हम मानते हैं इस पैक्ट के तहत अगर आपको कोई थ्रेट महसूस होती है आर्कटिक रीजन में तो आप वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाओ, लेकिन ये तो बताओ आज क्यों, कौन सी थ्रेट महसूस हो रही है। डेनमार्क की एजेंसीज, ग्रीनलैंड की एजेंसीज कह रही है कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है। ट्रंप साहब नींद से उठते रोज सुबह कहते हैं कि चाइना कभी भी थ्रेटन कर सकता है, रशिया कभी भी थ्रेटन कर सकता है, ठीक है। मे बी, आई डोंट, मे भी नहीं, ग्रीनलैंड भी नहीं, डेनमार्क भी नहीं, कोई भी नहीं कह पा रहा कि सच में ही वहां पे कोई बहुत सीरियस थ्रेट है इस समय। एक्चुअल कंडीशन ये है, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि 25 आउट ऑफ 34 क्रिटिकल मिनरल्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाले मिनरल्स वहां पे प्रेजेंट है जिनमें मेनली ग्रेफाइट है, टाइटेनियम है, ठीक है। दूसरा ये है कि ट्रंप गवर्नमेंट जो है, ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सामने रख के एक्चुअली वहां पे अपना इकोनॉमिक एडवेंचरिज्म करना चाहते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब अभी के सिचुएशन पे वर्ल्ड के लिए इसकी क्या रेमिफिकेशंस है, वर्ल्ड के लिए इसकी ये रेमिफिकेशंस है कि अगर ये हमारे साहब वेनेजुएला को दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उनकी वाइफ के साथ रात के 2 बजे एब्डक्ट करके यूएसए में प्रिजनर बना के, किस केसेस में, नार्को टेररिज्म के केसेस में। कहां से प्रूफ, कहां से क्या, कुछ भी नहीं, बिकॉज ट्रंप सेज इट, ऐसा है, ठीक है। वेनेजुएला के बाद अब नाउ ही इज गोइंग ऑल आउट विद डेनमार्क, ओके। ही इज इंटरवीनिंग इनटू इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईरान, ठीक है। ईरान के साथ भी जो है इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल मैटर्स में इश्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद पूरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है उन ट्रेड वॉर, उनके ऊपर टैरिफ्स कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो ये जो है दूसरी कंट्रीज को भी जो है सोचने के लिए फोर्स कर रहा है कि क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर का जो नया ट्रेंड चला है क्या ये सही है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन ने भी वापस थ्रेटन कर दिया कि अगर आप टैरिफ लगाओगे हम भी काउंटर टैरिफ मैकेनिज्म लगाने से छोड़ेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी वर्ल्ड ऑर्डर में इस समय यूएस, रशिया, इजराइल, ठीक है, इन जगह पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये सारी डेवलपमेंट जो है टेरिटोरियल सवर्निटी को भी जो है अंडरमाइन कर रही है, और इसके अलावा एक और चीज को अंडरमाइन कर रही है, दैट इज बेसिकली ह्यूमन राइट्स इन द परस्यूट ऑफ कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। आप अपने कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ह्यूमन राइट्स तक नहीं देख रहे कि कितना ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। दूसरा आर्टिकल एक और आज ही के न्यूज़पेपर में ये है, वो ये कह रहा है कि स्टॉर्म होता है ना, स्टॉर्म, जब भी सी के अंदर स्टॉर्म आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है ना, जैसे आई, आपने साइक्लोन में भी पढ़ा होगा,
आई क्या होता है बेसिकली द सेंटर मोस्ट पॉइंट जहां पे स्टॉर्म जो है मेनली जिसके अराउंड सराउंड कर रहा होता है, ठीक है। तो सेंटर स्टॉर्म में इस समय कौन है? जेंस फ्रेडरिक नील्सन। ये कौन है? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को मैंने आपको बता दिया, ये डेनमार्क की एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, ग्रीनलैंड की क्या है? ऑटोनॉमस टेरिटरी। ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनॉमस टेरिटरी विद ऑटोनॉमी ऑफ डेनमार्क। क्यों डेनमार्क के अंडर में? ऑफ डेनमार्क क्यों लिख रहा मैं? क्योंकि अभी भी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क के पास है, ठीक है। तो वो जो है पूरी तरह से, अब लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि आज भी लोगों से पूछो तो हजारों लोग, जितने भी 55,000 लोग हैं, कोई नहीं कहेगा हमें यूएस चाहिए, सब कहेंगे हमें क्या चाहिए? हमें डेनमार्क ही चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क नहीं चाहिए, ग्रीनलैंड को चाहिए फुल और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उनका जो इकोनॉमिक पोजीशन है इस समय, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसके ऊपर? डेनमार्क के ऊपर। जितना टोटल उनकी इकोनॉमी है उसका 1/3 जो है वो कहां से रिसीव करते हैं? दे रिसीव 1/3 एज सब्सिडी फ्रॉम डेनमार्क। दे रिसीव 1/3 एज सब्सिडी फ्रॉम डेनमार्क। सब्सिडी रिसीव करते हैं 1/3 डेनमार्क से। डेनमार्क के ऊपर इतना इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ठीक है। और कभी ना कभी चांसेस है, क्योंकि आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखो, पहले होम रूल मिला, फिर जो है अपनी ऑटोनॉमी मिली, हो सकता है अब इंडिपेंडेंस भी आए, जैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा डेनमार्क ग्रीनलैंड का। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूएस इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, जो कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, और काफी सिटीजन्स का एक सेक्शन है ग्रीनलैंड में जो ये कहता है कि हम यूएस जो है, यूएस की जो है इन्वेस्टमेंट को अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जान मांग रहा है। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और तुम्हारा पूरा हमारा सवर्निटी जो है वो हमारे अंडर रहेगा, हम ही परचेज करके उसको यूएसए का एक पार्ट बना लेंगे, ठीक है। तो डेनमार्क से हाथ नहीं छुड़ा सकते ग्रीनलैंड। क्यों? क्योंकि 1/3 सब्सिडी, इकोनॉमिक सस्टेनेंस वहीं से है, ठीक है। यूएसए को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट यूएसए से है, ठीक है। तो एक बहुत सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में इस वक्त फंसे हुए हैं, ठीक है। और अगर यूएसए इनको जो है एक्वायर कर ले तो उनके लिए ये बहुत ही टफ मेमोरीज हैं कॉलोनियल एरा की, जब वो कॉलोनाइज हुए 18th सेंचुरी में, किसके हाथों? डेनमार्क के हाथों। और डेनिश रूल जो चलता रहा वहां पे काफी टाइम पे, फैमिली की सेपरेशंस, कम्युनिटी की डिस्प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें भी जो है वो फ्रेश जो है मेमोरीज में फ्रेश हो जाएंगी। इसलिए अब डेनमार्क की जो ग्रीनलैंड की जर्नी है दैट इज टुवर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी। लेकिन ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए वो यूएसए को भी पूरी तरह से नाराज नहीं कर सकते, डेनमार्क से साथ नहीं छुड़ा सकते। तो बहुत ही एक डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा मिस्टर नील्सन को, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है इंडिपेंडेंस का, और अगर आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट को जो है, आप इन्वेस्टमेंट को क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते यूएसए की इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो कंसिस्टेंटली इस बात को रिटरेट करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब एनेक्सेशन नहीं होता। आप इन्वेस्टमेंट करो, वी आर हैप्पी, आप एनेक्सेशन करोगे, दैट्स नॉट द वे यू शुड डू इट, ठीक है। तो ग्लोबल ऑर्डर जो है बड़ा अजीब तरीके से इस समय रीशेप हो रहा है, ठीक है। अब मिलिट्री प्रेजेंस और इन्वेस्टमेंट यूएसए का जो है काफी है डेनमार्क ग्रीनलैंड के अंदर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ग्रीनलैंड के अंदर, इसका यह मतलब नहीं है कि आप ग्रीनलैंड को पूरी तरह से क्या कर लोगे, पूरी तरह से एक्वायर ही कर लोगे। और दूसरा, डेनमार्क के जो रिलेशनशिप हैं अपनी कॉलोनी के साथ, ठीक है, उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से इंटरनल टेंशंस भी हैं, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कभी भी यूएसए के साथ वो नहीं जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि कॉलोनियलिज्म उन्होंने पहले देखा हुआ है। ये न्यू कॉलोनियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म, ये जो है इससे उनको आज भी थ्रेट है। वो हमेशा से इसको रिटरेट करते रहेंगे कि यूएसए का इन्वेस्टमेंट इज वेलकम, यूएसए का मिलिट्री प्रेजेंस टू सम एक्सटेंट इज वेलकम, बट यूएसए का एनेक्सेशन इज नेवर वेलकम टू देम, ठीक है। This is what I have read from the newspaper today, and this is all how I want to explain it. Thank you so much for joining me today. So आज के न्यूज़पेपर का डिस्कशन काफी लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन अब this is how it is. Thank you. We will meet tomorrow.